in society so that it, empathizes with their needs and, it gives them their due respect. So ours is a multimodal center wherein we have occupational therapy, speech therapy, special education. We also run early intervention for small age kids, and we have a life skill program. And this year onwards, we have also started with inclusive education in one of our schools called NLK's Disha. So this is about a little about our center, and obviously all of you are aware of Early Childhood Association, and we are really glad that we have been able to partner with them, and you all know that they have been working pretty intensively in the field of early childhood care and are bringing a lot of changes in it. So coming back to our topic of dyslexia. So as Amita ji was mentioning, कि अगर dyslexia, and I'm going to be bilingual, we all are going to be talking in Hindi and English so that we are able to reach out to most people. तो जैसे अमिता जी ने अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तो बात किया कि dyslexia तो तारे ज़मीं पर. तो 2007 this movie came and then it became the buzzword. लेकिन उस मूवी के साथ साथ अगर हम स्टैटिस्टिक्स पर जाएं तो it states that 10% of the school going kids have dyslexia, and I can see a lot of teachers who have like joined this webinar. So for those, for you, what it means कि अगर आपका 60 बच्चों का क्लास है तो 6 बच्चों को कुछ ना कुछ learning disability है. Learning disability is an umbrella term. And I sincerely believe that each one of you sitting in your homes as teachers, as educators, and even as parents, we all want to reach out. We all want to help our kids, but we really don't know how to go about it. So this whole series of e-panel discussions, which we are going to do in the month of October, October happens to be Dyslexia Awareness Month, और आज 8 अक्टूबर जो है वो Dyslexia Awareness Day के रूप में मनाया जाता है all over the world, and that is why we are starting our initiative from this day, and we will be doing 3 more e-panel discussions on 17th, 24th and 31st, जिसमें हम जो आज बातें कर रहे हैं उनको हम आगे ले जाएंगे. So we all have assembled here to talk about, to spread awareness, to know about. आप जो educators हैं कि क्या करें, ये क्या चीज़ है, उसके बारे में हम इस संवाद को आगे ले जाएंगे. लेकिन जो सबसे इंस्पायरिंग चीज़ है जो मैंने अभी पढ़ी कि जो दुनिया के जो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल पीपल हैं, अगर उनकी एक रेशियो निकाली गई तो उसमें से 20% of them were dyslexics. So this is very inspiring and motivating for all of us. So let us all come together and discuss this issue. What is dyslexia? And I must say that we are very honored, we are very privileged to have a very distinguished panel of eminent panelists amongst us. And I'll start with a brief introduction. And I'll start with Dr. Kshitij Bansal. Dr. Kshitij Bansal is a pediatric neurologist. He's a MD Pediatrics with a fellowship in pediatric neurology from AIIMS Kochi. And he has also been an award recipient in International Child Neurology Association Symposium held at Chennai in 2015. He's like, for me, if I have to describe Dr. Bansal, I would say he's the only pediatric neurologist in Kanpur. And, I would ask Dr. Saab to, tell more about his work. And then I'll mention this thing ki, I got his number from a billboard that's put up on a guy. I actually asked my driver, please bhaiya gaadi roko, mujhe Dr. Saab ka number lena hai. Now I would introduce Amita Bajpayee ji. I have no words to express my gratitude towards her, and that's a very personal thing. She knows it very well. But to all of you, I will introduce her as an educational psychologist. She has done her PhD in educational psychology, and for many, many years, she had been a counselor at various schools of Kanpur and had been helping out kids. Presently, she's a counselor at DPS and Kangaroo Kids, and she is also the founder of Ladders to Learn, which is an educational hub for children.
Thank you, Amita ji, for joining us. Now I introduce Ms. Veena Basu, who's sitting all the way in Mumbai. She's the director, BWork, Mumbai. She has 2 centers in Mumbai. And she's also the technical head of our organization, technical head, special education, PKMC. She had been associated with us for last 2 years. And in spite of the distance, she had always made it a point. Every second month, she is in Kanpur. She is helping us out with all the things. And now I read out her qualifications, which is like too much. She has more than 25 years of experience as a special education teacher in America and in India. She holds a postgraduate diploma in teaching the multiply handicapped from Bombay University and a master's in science, special education, learning disability from Syracuse University, New York, US. And she has also done a year's program in narrative therapy from Australia. Really honored to have you all amongst us. Thank you so much. All the participants, more than 100, have already joined in. They are all waiting to hear you all. So I just shoot my first question to Dr. Kshitij Bansal. Dr. साहब, पहले तो ये बताइए कि pediatric neurologist कौन होता है? पहले तो मैम, thank you for such a nice introduction. And coming to your first question, pediatric neurology, ma'am, we deal with neurological problems like neurobiology. We don't deal with psychiatry or psychological problems. That's a minor domain of my specialty. Mostly it is, I deal with brain-related issues like learning disability is my domain, epilepsy, multiple movement disorders, muscle disorders. So all these things now, which earlier pediatricians used to see and were not able to diagnose among the genetic disorders and others, they are now coming into my domain, which I see and try to help these kids with. Thank you so much. Thank you so much. Now I'll come to Amita ji. आप कुछ अपने वर्क के बारे में बताएंगे, इतने सालों के अपने अनुभव में आपका बैकग्राउंड, आपने कैसा, a little about yourself. मैं एक्चुअली इस फील्ड में पिछले 20 सालों से जुड़ी हुई हूँ और आना भी शायद इस फील्ड में एक फैमिली फ्रेंड की प्रॉब्लम की वजह से हुआ था. उनकी बेटी को ये डायग्नोसिस हुई थी कि प्रॉब्लम है उस बच्ची को एंड दे वर नॉट अंडरस्टैंड व्हाट रेडी टू जस्ट move forward and they wanted to shift to Delhi and these kind of places. So at that time we have decided कि not only that kid but other kids like that girl also that kind of intervention here in Kanpur. So leaving the place will not work. So then we have started a small center like that. The name of the center was Koshish when we started it. And from there we have started doing so many like awareness campaign in the schools because at that time बहुत ज़्यादा awareness इस चीज़ की नहीं थी. मतलब अगर स्कूल में आती थी तो जनरली ड्रॉप आउट्स बच्चे होते थे या फिर एक ट्यूशन से दूसरा ट्यूशन, एक स्कूल से दूसरा स्कूल, यही होता रहता था बच्चों के साथ. फिर वो अवेयरनेस से शुरू होते होते स्कूलों से अच्छे कॉन्टेक्ट्स हुए और उसके बाद फिर वो चीज़ें शुरू हुई कि हाँ अब इस फील्ड में एक प्रॉपर वे में सिस्टमैटिकली काम करने की नीड है. Thank you so much, Amita ji. Veena ji, would you like to share your work with all of us? Yeah, my journey is basically special education में शुरुआत की थी मल्टीपल डिसेबिलिटी, लेकिन उसके बाद 91 में एलडी के बारे में थोड़ी सी भनक चालू हुई थी मुंबई में, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड कुछ नहीं था, किसी को कुछ नहीं मालूम था. तो मैं पढ़ने जा रही थी बाहर गांव अमेरिका, तो फिर थोड़ा ज़्यादा डीप रिसर्च करने के बाद लगा कि नया फील्ड है, नया कुछ सीख के वापस लेके आते हैं. तो फिर मैंने 2 साल का मास्टर्स किया, 2-3 साल काम किए वहाँ पे एंड आई केम बैक विथ इट. तो 94 में जब तक आए तब तक MDA महाराष्ट्र डिसलेक्सिया एसोसिएशन ने ऑलरेडी एक्सेप्टेंस ना काम चालू कर दिया था और फिर हम लोग सब जुड़ के हम लोग ने ना सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस कंटिन्यू किया एंड आई सेट अप अ क्लिनिक जहाँ पे we could provide services. Thank you so much, Veena ji. And I would just like to point out at this stage, me and Veena ji are wearing red. So red is the color for dyslexia.
Why is the red for color is the color for dyslexia? क्योंकि हमारे बच्चों की किताबों में बहुत लाल रंग से रंगा जाता है. So they are like if their mistakes are underlined. So we just try to tell all the whole world कि उनकी कॉपी में जो लाल रंग है उसके सपोर्ट में हमने लाल रंग पहना है कि we want to stop this whole thing. Anyways, let's come back to Dr. Kshitij. Dr. Kshitij, what is learning disability? आप हमें समझाएंगे exactly. Abhi, I had the honor of being part of a national level workshop in Aligarh in October before all this started. So that was on learning disabilities. So I gave a talk on learning disabilities. So I conducted a basic questionnaire among pediatricians around, there were 200 of them from across the country. And most of them had no idea about what to see in a child and to identify as a dyslexic or a child with special needs. That was among the pediatricians. So we can obviously estimate how much awareness must be there among the masses. Learning disability पे मैं आऊँ तो I would say learning disability बहुत ही clear शब्दों में बोले तो तारे ज़मीन पर is a classical description of learning disability. A child with normal or above normal intelligence, who has failure to acquire, retrieve, and use information when needed. It's a classical case of learning disabilities. Now, there are multiple types of learning disabilities. Sometimes there is a disorder of written expression. Sometimes there is just a problem of maths. If you remember the scene, when he was doing maths, he could see all the balls just colliding and not doing anything else. Letters would get jumbled up. So what they did was they put all the disabilities in one kid. Usually, every kid has one disability in more in one domain. The other domain is little less affected. So that is the classical learning disability. Veena ji, would you like to add on to it? हाँ क्षितिज जी, जो आपने कहा क्लासिक वही है, लेकिन क्या है ना, तारे जमीन पर देखने के बाद हर पेरेंट और हर बच्चा को लर्निंग डिसेबिलिटीज हो गया, कुछ भी उल्टा पुल्टा देखने लगे. तो फिर हम लोग ने समझाना शुरू किया कि ये डिफिकल्टी it should be 6 months continuously. 6 महीने तक होनी चाहिए और एक जगह नहीं, खाली स्कूल में नहीं दिखे, मल्टीपल सेटिंग्स में होनी चाहिए, मल्टीपल सेटिंग्स में होनी चाहिए, राइट. एंड प्लस रूल आउट करना चाहिए कि दिखना ठीक है, उसका सुनना ठीक है, उसको अच्छी एजुकेशन मिली है, अच्छे स्कूल में गए हैं, साइकेट्रिक मतलब कोई इमोशनल कोई गड़बड़ नहीं है, घर में कोई अब्यूज कर रहा है, ADHD नहीं है, because 25% of them have ADHDs. करेक्ट. लेकिन क्या होता है ना, epilepsy, very commonly they have frontal lobe epilepsies. They are not able to understand. We feel they have learning disability or something else. हाँ, तो एपिलेप्सी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसीलिए न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बहुत अत्यंत जरूरत है. बिकॉज एपिलेप्सी जैसी चीज हम टीचर्स या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट नहीं पिकअप कर पाएंगे. तो वो डॉक्टर क्षितिज के जो लोग हैं वो रूल आउट करते हैं कि चलो एपिलेप्सी नहीं है, ठीक है, एपिलेप्सी नहीं है, तो उसके बाद है क्या? फिर भी मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, मैं दिन रात उसको पढ़ा रही हूँ. So then that frustration and then the diagnosis and all, फिर अमिता जी के पास पहुंचते हैं, I guess. Right? Yeah. After a little bit of मार पिटाई also कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता. Actually, so much of anxiety is there related to these things in the parents. कि why my वो जो anxious behavior उनका है, वो कहीं ना कहीं बच्चे पे वो pass on करते हैं. And with that learning disorders or learning difficulties, उन बच्चों के साथ कुछ behavior issues अपने आप से आ जाते हैं. That is very, very significant to identify कि why these behaviors are there. तो पहले एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा हमारे पास जब वो रेफर होता है तो वो बिहेवियर इश्यूज के लिए होता है, और जब वो डायग्नोसिस होती है तो वो लर्निंग इश्यूज पे चली जाती है. So many things are there जो लर्निंग डिफिकल्टी कहें या लर्निंग डिफरेंटली कहें. मैं इसे डिसेबिलिटी कहने से थोड़ी सी हेजिटेंट इसलिए रहती हूँ बिकॉज व्हाट आई फील इफ वी कैन मेक द चाइल्ड लर्न समथिंग, हम अगर बच्चे को कुछ सिखाते हैं और उसकी प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हैं, then it should not be disability. So difficulty है areas में जिनको हम overcome धीरे धीरे by the time with the help of teachers and parents कर पाते हैं और उसको एक लेवल पे पहुंचाते हैं जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहे हैं उन चीजों के, उससे बच्चा ओवरकम कर पाता
Thank you, Amita ji. Now, Dr. Sab, you have mentioned about ADHD. तो आप इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे क्या कि LD और is ADHD related to LD? और क्या हेरिडिटरी होता है क्या हमेशा? LD is sometimes genetic in nature. There is a strong predisposition. We have found that people with a history of LD in family, they are up to 25 to 30% more prone to develop this thing. But the good thing is that they get caught very quickly because parents might have seen something. दूसरा इनका ADHD से एसोसिएशन, there are very good studies about it कि ये learning disabilities के up to 25% of the kids were later on diagnosed with ADHD also. So for classical learning disability, there should be no neurological or psychological problem like ADHD or epilepsy. Okay. या कोमॉर्बिडिटीज के अंदर दोनों मतलब एक बच्चे को दोनों है, ADHD भी है और SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज दोनों है. एंड जनरली आप 25 बोल रहे हैं लेकिन 50 तक जा सकते हैं. Oh my God. Yes, as for this thing कि SLD वालों को ADHD और ना कोमॉर्बिडिटी होती है. In your experience, is it sometimes a behavioral manifestation that a child develops ADHD because of learning disability? If I don't know to read and I want to avoid it, तो मैं यहाँ वहाँ देखूंगी तो लगेगा कि मैं ADD हूँ. ADHD का मिक्सचर सा लगेगा थोड़ा सा. हाँ, मैं ना अटेंड नहीं कर रही हूँ. Exactly. But actually I can't read, I can't write, so I am behaving like that as though I don't have attention. तो इसलिए क्लिनिकल actually बहुत डिटेल में करना पड़ता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे रेफर हो रहे हैं जो अटेंशन नहीं देते, टीचर्स का एक छोटा सा टैगलाइन होती है, मैम like she or he doesn't pay attention in the classroom. So उसमें से बहुत सारे टाइम पे डायग्नोसिस यही होती है कि बच्चा कर नहीं पा रहा because he is not able to copy from the blackboard. तो वो दूसरे बच्चे की कहीं उसकी पेंसिल गिर रही होती है, कहीं कुछ हो रहा होता है. So when teachers get distracted from the like उनका भी एक शेड्यूल है कि उन्हें भी चीजें कंप्लीट करनी है और वो डिस्ट्रैक्टेड होती हैं जब वो बच्चा उस लेवल पे मैनेज नहीं हो रहा बिहेवियर इश्यूज की वजह से. देन फिर वो चीजें निकल के आती कि अच्छा ये इससे कोरिलेटेड. सो एकदम सही कहा आपने. बिकॉज रेफरल जब होता है वो नॉर्मली अटेंशन के लिए ज्यादा होता है और पढ़ाई में वीक होता है, उसके लिए टीचर्स चला लेती हैं कि ना ऊपर क्लास में चले जाते हैं. लेकिन टीचर कांट हैंडल अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है मेरी क्लास को. दिस इज द मेन प्रॉब्लम. और पेरेंट्स आते हैं, पढ़ाई नहीं करता, डिस्ट्रप्शंस होने कोई मतलब नहीं है. They are more concerned, अकल पूरी है वैसे सब चीजें समझ में आती हैं, मूवी बता देगा बट पढ़ाई नहीं करता. Exactly. Very good in playing video games, very good in like with computers, very good in sports, but not able to study. And if you say okay ठीक है थोड़ा छोड़ दीजिए उसको, अरे कैसे मैम एग्जाम्स आ रहे हैं, मार्क्स आने हैं, तब मोर मुझे लगता है ये जो बड़ा सा एक मार्क्स आने हैं ये कहीं ना कहीं से बहुत प्रेशराइज करता है बच्चों को. और या इसका बड़ा भाई बहन तो इतना अच्छा है ये कुछ नहीं करता. हाँ एग्जैक्टली, कंपैरिजंस आर सो मेनी थिंग्स आर देयर, पर उसका जो प्रेशर बच्चे के ऊपर जा रहा है वो उसके बिहेवियर इश्यूज को कहीं ना कहीं बढ़ाता है. So thank you all three of you. So आप लोगों का जो भी वार्तालाप है सुन के जो मुझे समझ में आया है, and I think this will be passing on to other participants because आप लोग अपने अपने फील्ड्स के स्पेशलिस्ट हैं. तो LD एक ऐसी कंडीशन है जिसमें और सारी जो आप कोमॉर्बिडिटीज बोल रहे हैं उनको रूल आउट करने के बाद एक बच्चे को पढ़ने लिखने में दिक्कत है. वीना जी आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? Would you like to add on something to it? और सही बात है, you have to rule out कि ये सब मतलब ना प्योर मतलब दिमाग चल रहा है. न्यूरोलॉजी एग्जामिनेशन, इमोशनली साइकेट्रिक एग्जामिनेशन से मालूम पड़ता है कि देयर इज नो इमोशनल प्रॉब्लम. विजन, हियरिंग कि ना बोर्ड देख पा रहा है लेकिन दिखने में प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स नॉट द इशू. राइट. पढ़ रहा है, अच्छी स्कूल में जा रहा है, ट्यूशन पेरेंट पढ़ा रहा है घर पे, एनवायरनमेंट सब अच्छा है, फिर भी मेहनत कर रहा है लेकिन वो मेहनत का उसको फल नहीं मिल रहा है. जैसे और बच्चों को ना जितने मार्क्स, फल मतलब बच्चे के लाइफ में थोड़े वो मार्क्स होते हैं.
एंड दैट सेल्फ एस्टीम उसका लोअर हुए जा रहा है. दैट्स द. थैंक यू सो मच वीना जी. डॉक्टर साहब से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा. जैसे डॉक्टर साहब ने अभी हमें उदाहरण दिया था कि यश का बड़ा भाई पढ़ता है, यश नहीं पढ़ता है, तो अब यश के माता पिता आपके पास आए हैं, तो अब आप उन्हें क्या सलाह देंगे डॉक्टर साहब? यश के माँ बाप को सबसे पहले तो मैं बच्चे को असेस करने के लिए कहूंगा. सबसे पहले तो मैं एडवाइस दूंगा कि प्लीज डू नॉट प्रेशराइज. डॉक्टर साहब, योर फ्रेम इज फ्रोजन. इसको पढ़ता नहीं पढ़ता. डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ यश. डॉक्टर साहब, कैन यू रिपीट? I'll have a detailed assessment to rule out. Am I audible? Yes, now you are. You are. Please repeat what you said a little while. Oh, okay. So सबसे पहले तो यश के पेरेंट्स को I will request not to pressurize यश. Second, I will have a detailed assessment of Yash in my OPD, whether to rule out any neurological problems as in epilepsy, whether he has a genuine attention deficit hyperactivity disorder, or is it a manifestation of some hidden disorders like tics, for example. So इस तरीके की neurological conditions को मैं सबसे पहले तो rule out करूँगा. I'll take a detailed genetic history, find out whether the kid has any senior siblings or relatives with a learning disability. If I do not find a neurological problem, I will send the kid to you learned people for a detailed assessment and to identify whether the kid has learning disability and needs help. So इसके बाद आपने भेज दिया डॉक्टर अमिता के पास. जी, अब आप बताएं, what are the steps or kinds of tests you will do to diagnose LD? आप क्या टेस्ट्स करेंगे उन स्टेप्स के ऊपर? मैम, जब सबसे पहले हमारे पास बच्चा आता है तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जनरल एक हिस्ट्री लेते हैं. हम लोग भी सबसे पहले एक डेवलपमेंटल हिस्ट्री बच्चे की लेते हैं कि उसके पैदा होने से लेके उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आई हैं, टू रूल आउट द थिंग्स. उसके बाद एक पेरेंट्स की एक चेकलिस्ट हम फिल कराते हैं कि अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स क्या उनको प्रॉब्लम लगती है बच्चे के लेवल पे, क्या उन्हें दिक्कत आ रही होती है. Then we assess the child informally. पहले एक informal टेस्ट करते हैं. अगर उसमें भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही होती हैं, then we do dyslexia test, and with dyslexia test we do an IQ test, because see, we have to just understand whether it is a problem of academic or cognitive problems. So we have to rule out all the things. इसके साथ साथ हम खुद भी अगर डायरेक्टली हमारा बच्चा, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे पास आता है तो हम आगे भेजते हैं. अगर हमें लग रहा होता है कि बच्चे की किसी तरह की हियरिंग का या विजन का या इस तरह का प्रॉब्लम है, तो हम उसको भेजते हैं कि पहले आप उसको रूल आउट कराइए. या कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे आते हैं कि फिक्स आ रहे हैं बच्चे को, तो इस तरह की चीजें कराते हैं कि बच्चे का ओवरऑल एक असेसमेंट बहुत बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, सो दैट उसकी जो आगे उसके स्पेशल एजुकेशन की प्लानिंग होती है, जो उसके एकोमोडेशंस की प्लानिंग होती है, वो ठीक से की जा सके. इसमें टीचर्स और पेरेंट्स जो भी चेकलिस्ट होते हैं, क्योंकि स्कूल से भी हमें एक चेकलिस्ट हम प्रोवाइड करते हैं टीचर्स के लिए, जो उनको भी फिल करना बहुत जरूरी है कि उनका जो स्टेटमेंट है दैट इज वेरी वेरी, वो कैसे उस चीज को ले रहे हैं बच्चे की पढ़ाई को और बच्चे की जो प्रॉब्लम आ रही है उससे. तो बेसिकली एक फॉर्मल टेस्टिंग होती है, पेरेंट्स की चेकलिस्ट, पेरेंट्स का इंटरव्यू, एंड देन वी जस्ट गो टुवर्ड्स इनफॉर्मल टेस्टिंग, IQ टेस्ट, एक लर्निंग डिसेबिलिटी टेस्ट, एंड देन द ग्रेड लेवल टेस्ट. दीज आर द बेसिक टेस्ट विच इज रिक्वायर्ड. एंड जैसे कल बीना जी ने एक टेस्ट के बारे में बताया था, डाली टेस्ट इज देयर ऑल्सो ऑनलाइन. तो वो टेस्ट है जो फ्री पड़ा है, जिसे टीचर्स चाहें तो टीचर्स भी जाके उसे देख सकते हैं और कर सकते हैं अपने लेवल पे. वो एक चेकलिस्ट है जिस फॉर्मेट में आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है. थैंक यू अमिता जी. वीना जी, वुड यू लाइक टू ऐड टू इट? हाँ, तो ये डाली के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट सेशन में करेंगे, राइट? तो बस हमारे पास बच्चा आता है तो आई एम अ स्पेशल एजुकेटर, तो मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूंगी, करेक्ट? सो आई रन अ लॉट ऑफ एज के हिसाब से, ऑफ कोर्स वो चेकलिस्ट वो सब हो गया. अब IQ और सब मालूम है, रूल आउट हो गया है कि ये ना सब कुछ ठीक है, फिर भी पढ़ाई में गैप है. सो देन माय जॉब इज टू जोन, एकदम फोकस करके कि कहाँ क्या पार्ट है पढ़ाई में. पढ़ाई तो बड़ा चौड़ा लंबा वर्ड है, बड़ा वर्ड है,
इट्स एन ओपन एंडेड, टू फाइंड आउट कि क्या एग्जैक्ट एरिया है जहाँ पे डिफिकल्टी है, और वो डिफिकल्टी है तो किस कारण से हो रही है, किस ढंग से उसको एड्रेस किया जाए. तो that's where we take on वहां से. Thank you. Thank you. Dr. Dr. Can you hear me? Dr. I can hear you. Yeah, thank you. Dr. What are the red flags for LD? रेड फ्लैग्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज कि चाइल्ड इज नॉर्मली इंटेलिजेंट, मतलब ऐसे कहीं कोई दिक्कत नहीं. ओनली प्रॉब्लम इज विद एजुकेशन, स्पेशली राइटिंग. Mirror images if persisting more than 6 years. Veena ma'am and Namita madam can correct me if I'm wrong, because earlier kids are writing in mirror images till 3, 4 or 5. My daughter is in preschool, so her parents keep on asking me, they're writing in mirror images. Is there some problem? So usually I tell them to wait till 5 or 6 years at least. So mirror images writing, child is not able to understand but not able to express. I think that is the biggest red flag to identify a child with learning disability. Especially you have to teach them maths, basic maths again and again, writing 9 as P again and again. Those are very basic red flags for the parents who are present here. Amita ji, aap going to schools as a counselor, what would be red flags for you? Like, if a teacher approaches you, aap kya bataoge? Basically, first of all, the child is reluctant to sometimes go to school or attend the classes. ये बहुत बड़ा इश्यू है कि बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, क्लास में नहीं जाना चाहता, पढ़ाई, रीडिंग, बुक्स उठाना नहीं चाहता है, रिलक्टेंट टू राइट, इनकम्प्लीट वर्क, काम नहीं पूरा हो रहा है उसका किसी भी तरह से, राइटिंग में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं. जब पढ़ने को उसको बोला जाता है या पढ़ाई के लिए कुछ बोला जाता है तो उसके फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बच्चे का. बच्चा एंग्शियस हो जाता है, चीजों को अवॉइड करना चाहता है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं बिकॉज ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो वो डिस्ट्रैक्ट होता है बहुत ज्यादा पढ़ाई को लेके. तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो बच्चे के बिहेवियर में दिख रहे होते हैं कि ये सारी चीजें हैं. बहुत सारी चीजें बताती हैं. सबसे पहली टीचर्स जो मेंशन करते हैं एज अ रेड फ्लैग कि द चाइल्ड इज नॉट एबल टू परफॉर्म अप टू द क्लास लेवल. क्लास में बच्चा नहीं कर पा रहा है, ऑल्दो उनका स्टेटमेंट ये भी होता है, ऑल्दो ही और शी इज वेरी इंटेलिजेंट इन अदर एक्टिविटीज, इज नॉट दैट. बट समटाइम्स व्हाट हैपन, जब बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा है और थोड़ा सा डलनेस भी शो कर रहा है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसर्न होने की चीज होती है कि क्या कॉग्निटिव एबिलिटीज भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पा रहे हैं. क्या ये रीजन है कि जिसकी वजह से लर्निंग इश्यूज ज्यादा दिख रहे हैं और बच्चा समझ नहीं पा रहा है इन चीजों को. So all these things are very, very important. If the child is energetic, if the child is a very good IQ, वो सारी चीजें orally कर पा रहा है, orally समझ पा रहा है, तो हमारा टीचर से एक क्वेश्चन होता है कि whether the child is able to give oral replies properly. जो कुछ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं क्लास में, orally अच्छा कर पा रहे हैं. जब टीचर हमको ये डिस्क्रिमिनेट करके बता पाते हैं कि हाँ ओरली ठीक है, रिटन्स में और रीडिंग में और जो एकेडमिक वर्क है उसको प्रेजेंट करने में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, देन देयर इज एन अलर्टनेस कि हाँ प्रॉब्लम है. दूसरा एक बहुत, जैसे अभी आप अर्ली इंटरवेंशन पे उत्तराखंड में भी काम हो रहा है, जो बहुत अर्ली स्टेज में पेरेंट्स आते हैं, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की बहुत प्रॉब्लम होती है. दिस इज नॉट रिलेटेड टू स्पीच. स्पीच आ जाती है बच्चों में, बट वो सेंटेंस फ्रेम करना, भाषा को ठीक से यूज कर पाना, ये बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है छोटे स्टेज में बच्चों के साथ, कि जो ये हमें शो करता है कि क्या इससे आगे जाके किसी तरह के लर्निंग इश्यूज आएंगे. तो दीज आर द बेसिक थिंग्स पेरेंट्स को भी दिमाग में रखना चाहिए कि राइट स्टेज, राइट टाइम पे अगर कोई माइलस्टोन डेवलप नहीं हो पा रहा है तो बच्चा जरूर एसेस होना चाहिए, और उसका जो प्रॉपर आप जो भी एसेस करके आगे का काम करते हैं वो सारा कुछ बच्चे के साथ. Thank you, Amita ji. With your huge experience, Veena ji, would you like to tell us कि pre-primary में कैसा red flag होता है, primary और फिर secondary तक भी चला जाता है, so what are the red flags? Would you like to elaborate on it a little bit more? Right, so red flags बदलते रहते हैं हर एज के हिसाब से. तो जिस बच्चे का लकीली उसको करेक्ट करना सपोर्ट पेरेंट्स के थ्रू या एनवायरनमेंट के थ्रू मिला है, तो प्री प्राइमरी में जो डॉक्टर साहब बोले और न अमिता जी ने कहा,
वो सब उनका ठीक होते होते वो बच्चा सेकेंडरी तक पहुंच जाता है, 9, 10th, 11th, 12th। लेकिन जब वो 11th, 12th की जो competitive एग्जाम्स होती हैं, योर ना नेशनल लेवल एग्जाम्स या जो भी, तो उस समय दिक्कत आती है। मतलब ऐसा लगता बच्चा कभी टेस्ट नहीं हुआ है, 10th तक पहुंच गया है, 12th तक पहुंच गया। कभी कभी हमारे पास बच्चे कॉलेज में, बेस्ट कॉलेजेस में, इंटरनेशनल कॉलेजेस में पढ़ने चले गए हैं, फिर आते हैं असेसमेंट के लिए, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म कॉलेजेस में, स्कूल्स में इन 11th स्टैंडर्ड। क्यों नहीं? कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है। तो सपोर्ट एंड से बच्चा वहां तक तो पहुंच गया है, लेकिन कंपेटिटिव एग्जाम्स होती क्या है, टाइम बाउंड होती हैं, और प्रोसेसिंग तुमको एकदम फास्ट फास्ट करना है, 2 मिनट में ये आंसर देना है, करेक्ट? सो देन दैट चाइल्ड फॉल्स अपार्ट, मतलब वो फिर नहीं कर पाता है, तो दैट टाइम टेस्टिंग के लिए आते हैं। सो इट चेंजेस द फॉर्म। सो जब तक नहीं हो रहा है, आई थिंक इट्स ओके, सपोर्ट देते रहो, चलते रहो, because the self esteem is the most important thing. But that awareness ki it is not a difficulty, it is a disability, and that is the reason the person is not able to give that competitive exam like any other another colleague of his or his classmate, jabki wo mehnat utni hi kar raha hai. So that's how it changes form. Even as an adult, it doesn't leave that person. कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, एमबीए बन गया, तो फाइनेंस में उनको जब नंबर्स पे काम करना पड़ता है या लंबी चौड़ी ईमेल लिखनी पड़ती है, तो उस समय भी दिक्कत आती है। बट दे लर्न हाउ टू कोप विथ इट बाय गोइंग अराउंड इट, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड अदर सपोर्ट सिस्टम टू कोप। सो दैट्स व्हेन दे रियली फ्लरिश ना। जो आप जो 20% जो आप बोल रहे थे ना कि सब हुज हु हैं, तो वो हमारे हुज हु बन जाते हैं फिर। Yes, so probably हम लोग 31st को, मैम, we will be talking about the participants. 31st को we will be talking about if you have a disability certificate SLD का, so what are the accommodations that you can get in 10th board exams, right? Veena ji, we will be talking yes. about it in break. Yes. Right. And to all the participants, we would be sending you the e-handouts wherein we will be, we'll be giving you the content where it will be all written what is LD, and all the red flags which all these learned people have compiled will all be sent to you. Now, Dr. Kshitij, can I ask a question? Sure, ma'am. Dr. Sab, do parents approach कि इसको LD के लिए दवाई दे दो? Yes. दिमाग एलडी के लिए नहीं, आई इवन गेट बेटर वंस, इसको दिमाग तेज करने की दवा दे दीजिए। What do you prescribe, sir? I tell them, had there been such medicine, I would have taken first. Okay. So I tell them usually that there is no such medicine. Although there are some things like omega-3 fatty acids, L-carnosine, they have shown some benefit, but it is still under scientific research. They are not recommended as treatment. They are only a supportive treatment. Only people like Amita madam and Veena ma'am and of course Ruma ma'am can help these kids. That is what they should follow more rather than any other specific treatment for increasing intelligence or treating learning disability. Thank you. Thank you so much. Is other things a little different in Mumbai, or what about the medicine? It's more or less same. Medicine नहीं, but generally awareness आता है ना, आते आता है। अभी तो इंटरनेट है, तो कानपुर और मुंबई में कोई डिफरेंस नहीं है। Now internet is, everybody is gone, so there's no difference Mumbai कानपुर, खाली सर्विसेज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्वांटिटी में। Thank you so much for making us feel good. Thanks, Veena ji. Amita ji, now I would like to ask you ki how difficult it is for you to convince a parent कि कुछ learning difficulty है. How do you go about it? And after you have talked about parents, I would also like you to talk about कि आप कैसे counsel करते हैं, parents को, कैसे counsel करते हैं teachers को.
So can I have your views? Actually देखिए जनरली अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो जब बच्चे काउंसलर के पास कह के भेजे जाते हैं या साइकोलॉजिस्ट से आप मिल लीजिए हमारे से जुड़े हैं, तो उन्हें लगता था पहला स्टेटमेंट कि मेरा बच्चा पागल नहीं है, कर नहीं रहा है, पर मेरे बच्चे को कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। तो देयर वाज अ सोशल स्टिग्मा कि नहीं नहीं, अगर उनके पास जाएंगे तो मेरा बच्चा लेबल्ड हो जाएगा, या फिर अभी भी कुछ पेरेंट्स में है। लेकिन धीरे धीरे वो कम हुआ है, पेरेंट्स बहुत अवेयर हुए हैं इस चीज को लेके कि अगर पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हेल्प्स आर देयर, पढ़ाई के लिए हेल्प्स अवेलेबल हैं। जब भी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है, हमारे आने से पहले पेरेंट्स थोड़ा पढ़ लिख के आते हैं, इंटरनेट में देख के आते हैं, और बहुत सारी चीजें उनकी क्वेरीज होती है जो शायद इंटरनेट से उनकी नहीं सेटिस्फाइड हुई होती है, शायद वो सिर्फ उतना डिस्कस करने आते हैं। अदरवाइज दे आर लाइक इन दैट पोजिशन कि अगर कुछ परसेंटेज को छोड़ दें कि हाँ मेरे बच्चे को ये दिक्कत है, ये हमें लग रहा है, आप एक बार श्योर कि ये दिक्कत है या नहीं है, और अब आप आगे का बताइए कि हम इससे ओवरकम कैसे करें। तो अगर हम थोड़ा सा पास्ट के प्रेजेंट के एक्सपीरियंस को अपने काउंट करें, तो ड्यू टू अवेयरनेस, ये जो इंटरनेट के थ्रू हमें मिल रही है, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं, स्कूल्स भी टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स कराते रहते हैं रिलेटेड टू लर्निंग प्रॉब्लम्स, टीचर्स भी अवेयर हो गए हैं। पहले व्हेन वी हैव स्टार्टेड, इवन टीचर्स वर नॉट अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। अगर उनकी क्लास में किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती थी तो दे वर लाइक ब्लैंक कि व्हाट टू डू नाउ, बट नाउ टीचर्स आर अवेयर। सो पहला उनका इंटरेक्शन जो टीचर्स से होता है वही ऐसा होता है, देयर इज सम प्रॉब्लम, वी हैव दिस फैसिलिटी इन आवर स्कूल, सो आप मिलके एक बार बात करिए। सो उससे क्या होता है, जब पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन हमें मिलता है, जब पेरेंट्स एक पॉजिटिव मोड से हमारे पास आ रहा होता है, तो हमें बहुत सारी चीजों को बच्चे के साथ करना, एकोमोडेट करना, जैसे क्लास स्कूल में जो हम एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, वो करवाना आसान है। वरना पहले ये होता था कि इफ वी वांट टू प्रोवाइड सम एकोमोडेशन, तो पेरेंट्स को लगता था कि अरे अब इतना अगर हम स्पेलिंग पे ध्यान अभी नहीं देंगे तो फिर आगे चल के तो इसकी स्पेलिंग्स और पुअर हो जाएंगी, फिर ये कैसे कर पाएगा, आगे इससे नहीं हो पाएगा। बट नाउ दे वांट दिस थिंग बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आगे चल के ये चीजें उसके लिए कितनी हेल्पफुल होगी। एंड नॉट, और इस ऐसा ही नहीं है कि वो सिर्फ एकोमोडेशन से ही संतुष्ट है, दे वांट प्रॉपर रिमीडियल। तो ये सारी चीजें पेरेंट्स में अवेयरनेस आई है। हाँ, कुछ एक भी ऐसा है जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इस चीज को एक्सेप्ट करने में, तो वहां बहुत जरूरी है कि हम उनको धीरे धीरे कन्विंस करते कि आप इतना पार्ट करिए, इफ यू सी एनी रिजल्ट वी विल जस्ट वर्क ऑन दिस थिंग, rather than labeling the child that your child, because they are not at all ready for assessment, they are not at all ready to meet any kind of like a specialized person. So what we do, we start working on the kids, and then we have to show, see this much is there, itna karke itna effect hai, to sochiye agar isko special help mili तो वो तरीके से थोड़ा थोड़ा कन्विंस उन्हें किया जाता है, और उस बच्चे के लिए जो हेल्प रिक्वायर्ड है, जो आगे चल के उसको हेल्प करेगी, उसके लिए आप अप्रोच करेंगे। तो दिस इज द मेन डिफरेंस। बाकी अप्रोचेस ठीक है, अब पहले से बेहतर है थोड़ी सी। Thank you, Amita ji. Veena ji, I would also like to, to share your views on it. How difficult it had been to deal with the parents and. हमारे लिए इट्स रिलेटिवली इजियर जब तक पेरेंट हमारे पास आते हैं क्लिनिक में, बिकॉज हमारे यहाँ पे भी ना मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, तो जब तक हमारे पास पहुंचते हैं ना, द पेरेंट इज लुकिंग फॉर टारगेटेड हेड ऑन सपोर्ट, दे आर नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, बिकॉज उनको ऑलरेडी स्कूल में हेल्प क्या होता है ना, स्कूल में फ्री हेल्प मिलती है उनको, करेक्ट, द काउंसलर इज पार्ट ऑफ द स्कूल सिस्टम, तो या तो वो उनसे ले या नहीं ले, दैट्स देयर चॉइस। तो वो लोग उन्होंने चॉइस की नहीं की, दैट्स देयर, बट जब हमारे पास आते हैं दे आर वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड टू एक्चुअली कैरी आउट जिस चीज के लिए आए हैं, दे वेरी क्लियर कि कुछ गड़बड़ है, वो गड़बड़ we don't have to diagnose. I don't insist on diagnosing because the parent might not be ready. But the support is the main thing, and targeted therapy is the main thing.
And that targeted therapy requires investment of time and commitment from the parent and the therapist. वो चालू हो जाता है and parent is requested to sit through each and every session. So the parent watches कि ये therapy अलग है to my tuition teacher. उसको parent knows the difference because उसने tuition teacher already try कर चुकी है वो. No parent हमारे पास आएंगे पहले सीधा. Normal क्या होता है? Parent खुद सिखाता है बच्चे को, school teacher सिखाती है, फिर एक ट्यूशन टीचर रख देते हैं या ना नेबर सिखाता है, एंड देन नहीं हो रहा है तो देन यू लुक फॉर प्रोफेशनल हेल्प. तो इसलिए हमारे पास जब तक आते हैं दे वांट गुड क्वालिटी टारगेटेड सपोर्ट एंड दे सिट थ्रू इट एंड दे वॉच एंड दे कैन सी द डिफरेंस एंड देन दे सी द रिजल्ट विद इन अ फ्यू मंथ्स. सो देन वी टॉक अबाउट अगर सपोज थोड़ा हायर क्लासेस में आ गया बच्चा 7th 8th 9th और फिर भी स्ट्रगल कर रहा है तो अकोमोडेशन चाहिए ना, तो उसके लिए टेस्टिंग चाहिए. सो देन वी स्टार्ट ओपनिंग द टॉपिक अबाउट टेस्टिंग. सो इट डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड केस टू केस. पहले सपोर्ट की टेस्टिंग या पहले टेस्टिंग एंड सपोर्ट, दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल केसेस. Thank you so much. Amita ji, would you like to talk about it कि special educator is not a tuition teacher, मतलब ना, tuition teacher is not equal to special educator और special education does not equate to teaching for extra hours, है ना. डॉक्टर साहब ने ये बात जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो ये बात, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स जो हैं हमारे साथ आज, तो ये बात पे थोड़ी सी हम लोगों को सबको अपना व्यू पॉइंट रखना है कि ट्यूशन टीचर और स्पेशल एजुकेटर सीधा सीधा मैम क्या अंतर होता है. देखिए, ट्यूशन टीचर को जो भी आप रखते हैं उसका सीधा सीधा एम होता है जो कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो उसको पढ़ा दे, इम्पार्ट कर दे. वाइल स्पेशल एजुकेटर का मेन एम होता है कि जो स्किल्स बच्चे में नहीं है, जिन स्किल्स के ना होने की वजह से पढ़ाई का आउटपुट नहीं आ रहा है, हम उसे डेवलप कराएं. तो जब स्किल्स आ जाएंगी, सपोज बच्चे में रीड करने का स्किल नहीं है, तो अगर बच्चे को एक स्पेशल एजुकेटर रीड करना सिखा देता है, बच्चे को अपनी बुक्स के साथ ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना है. बट अगर हम ट्यूशन टीचर से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो रीडिंग कराए, तो उसके पास वो स्पेशल ट्रेनिंग नहीं है. पहली चीज, दैट ट्यूटर इज नॉट ट्रेन्ड टू डील विद दीज किड्स, व्हाइल special educators are fully trained to deal with these problems. So this is the basic difference कि आप एक trained से कुछ करा रहे हैं, एक untrained से कुछ करा रहे हैं. ठीक है. दूसरा, उनका टारगेट 1 घंटा स्कूल वर्क, that's it. Special educator का टारगेट focus on the problem, skill development, so the child would be able to perform well in school. So this is the basic difference. और होता यह है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा पेशेंस स्पेशल ट्रेनिंग में रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक वो कंसिस्टेंट नहीं होंगी चीजें, थोड़े टाइम को देके नहीं होंगी. क्योंकि कभी कभी बच्चे हमारे पास आते हैं 6th 7th 8th, जैसे वीना जी कह रही है 9th 10th में अब डायग्नोस कर रहे हैं, तो आप पीछे से कितना पाइलअप होके आए हैं, और उसको अगर आप समय नहीं देंगे ओवरकम करने के लिए चीजों को, तो फिर स्पेशल एजुकेटर के लिए भी एक बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम हो जाता है वो. क्योंकि बिकॉज अगेन प्रेशराइजिंग की, अरे मैम अभी तो 2 महीने से आ रहा है, अभी तो 6 महीने हो गए, अभी तो ये नहीं हुआ. तो सो मेनी थिंग्स आर देयर. ट्यूटर के पास ये प्रेशर भी नहीं है. उन्हें आना है, याद कराना है, उन्हें बता देना है कि भाई बच्चे को याद करा दीजिए, आज मैंने ये सिखा दिया. पर स्पेशल एजुकेटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं कि मेरा ये आज IEP का टारगेट है, मैंने जो एजुकेशनल मेरी ये टारगेट्स है और मुझे इन तरीकों से वो टारगेट्स अचीव करने हैं. सो स्पेशल एजुकेटर अपने टारगेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेते हैं. वो कि आप सिखा दीजिए, आपका हेल्प और आपका सपोर्ट जरूर लेंगे, पर आप पे पूरी तरह आपको ट्रेंड करके मान के वो ये नहीं कह देंगे कि भाई आप ये ट्रेनिंग दे दीजिएगा, हमने तो इतना सिखा दिया. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि जब आपके बच्चे को जरा सा भी लगे कि कुछ स्ट्रगल है पढ़ाई की, तो प्लीज गो टूवर्ड्स स्पेशल एजुकेशन. ट्यूशंस या पढ़ाई या जो स्कूल का आपको कराना है, अगर आप
घर पे बैठ के खुद भी कराएं तो थोड़ा हो जाएगा ओरली, क्योंकि बच्चा रीड नहीं कर पा रहा है, तो जितना ओरल इम्पार्ट आप कर सकते हैं नॉलेज को. सी बेसिक 2 things are there what I feel, knowledge and skills. नॉलेज आप ओरली इम्पार्ट कर दो, सुना के इम्पार्ट कर दो, दिखा के इम्पार्ट कर दो, इम्पार्ट हो जाएगी. बट स्किल्स, इफ स्किल्स आर नॉट देयर, सो हाउ विल द चाइल्ड प्रोड्यूस दैट नॉलेज जो उसके अंदर है. सो ट्यूशन टीचर, अगर बच्चे को किसी तरह का डायग्नोसिस होता है कि उसको लर्निंग इश्यूज आ रहे हैं, सो प्लीज प्लीज गो टुवर्ड्स स्पेशल एजुकेशन, not for tuitions. Thank you. Any one of you would like to add on to it, Dr. Bansal or Veena ji? Madam has elaborated in such a wonderful and lucid manner. Doesn't need any further explanation. Thank you so much. Veena ji, though Dr. Bansal has commented on it, I would like to know from you, many kids do letter reversals and make mirror images. When does it suspect difficulty? You know, post 7 years. 7 years, हाँ, 7 years तक एक डिफिकल्टी है, डजंट मीन लर्निंग डिसेबिलिटीज है या डिसलेक्सिया है. मिरर इमेज हो रहा है, खाली एक अकेला खाली मिरर इमेज हो रहा है. अगर मिरर इमेज के साथ साथ वो जो हम लोग ने आधे घंटे से बात कर रहे हैं, वो रेड फ्लैग्स, बहुत सारे और 2, 4, 10 रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं, तब फिर जाके हम लोग को चिंताजनक वो यू शुड कंसिडर. बट आफ्टर 7 ये कंटिन्यू रहे, then you have to get support. You have to figure out some strategies from a special educator कि कैसे इसको address किया जाए. Thank you. Now Amita ji, again I would like to ask you कि after the diagnosis, very quickly could you tell us what the next step? After the diagnosis, first thing, go to that special things जो लिए required है. एक IEP प्लान्स बनाए जाएंगे, उनका इंडिविजुअलाइज जो प्लान बनता है वो बना के, और जो भी रीडिंग की, स्पेलिंग की, राइटिंग की जो भी शुरू करनी है वो शुरू की जाए. साथ साथ जो एकोमोडेशन विद इन स्कूल्स रिक्वायर्ड है बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हिडन प्रॉब्लम है ये. टीचर्स को जब एक्सप्लेन करती हूँ कि मैम अगर एकोमोडेशन देंगे तो आगे कैसे चलता है, मैंने बिना चश्मा लगाए पढ़ाओ तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगी ना. एक चश्मा तो चाहिए हमको भी कि हम रीडिंग कर पाए, बिकॉज मैं चश्मा लगाए बिना अगर पढ़, इसका ये मतलब नहीं कि मैं रीडिंग डिसेबल हूँ. गिव मी प्रॉपर, मुझे दे दो मैं पढ़ लूंगी. तो सेम विद दीज एकोमोडेशन फॉर चाइल्ड, कि आप उसको वो चश्मा दे देते हो, वो नॉलेज को गेन भी कर पा रहा है और नॉलेज को दे भी पा रहा है. सो एकोमोडेशन इन द स्कूल विद स्पेशल ट्रेनिंग विद स्पेशल एजुकेटर, दिस इज द मेन मच मोर रिक्वायर्ड. Thank you. Thank you. Now we have got a question from the chat, and it states like this: कि after taking the intervention, what is the success rate of these children in completing their education? You know, this is like this parent has like this question properly framed. करने के बाद क्या होगा? So any answers? Like Veena ji, would you like to take it on? Intervention मतलब इंटरवेंशन मैंने जैसे कहा था ना कि चेंजेस फॉर्म. तो आपने इंटरवेंशन प्राइमरी में किया कि रीडिंग नहीं आती बच्चे को, रीडिंग आ गई, या राइटिंग, हैंड राइटिंग नहीं आती थी तो हैंड राइटिंग लेजिबल हो गई, करेक्ट. बट इट चेंजेस फॉर्म. आपने इंटरवेंशन प्राइमरी में किया, लेकिन सेकेंडरी या हाई स्कूल में रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट. सो बीइंग अ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, तो कुछ और करना है आपको भी इंटरवेंशन, या स्ट्रैटेजी से नए दूसरी तरह के स्ट्रैटेजी सिखाने, करेक्ट. सो इट्स चेंजिंग फॉर्म, सो यू हैव टू कीप बीइंग विथ इट एंड वर्किंग विथ इट. इट जस्ट डजंट डिसअपीयर. Abhi, recently I had a very different kind of experience from a businessman in Kanpur. So his son this is around 1 year old, 1 year back. So his son is in some boarding school in Pune. So this person comes to me, the mother, and she says, I know he's not very good in studies. So can you make a learning disability certificate for him so that they let him continue his studies in school? Because I cannot pressurize him too much. He's a pampered kid.
So these kind of things have also started coming, that about misuse. So do these things come across you, Madam Veena ma'am and Amita ma'am? Many a times, sir, many a times. Like being a like school person, Truly because I used to, I used to visit like school, and like they know कि okay, ma'am is there, and अगर वो कह देंगी तो हमारे बच्चे को ये accommodations हो जाएंगे. And when I say कि भाई इसका टेस्ट वेस्ट कराइए, एसएस करा के लाइए, तब प्रॉपर हम देखें प्रॉब्लम. नहीं मैम, आप है तो स्कूल में, आप was not ready to get assessment done. हाँ, दैट इज नहीं, तो आंसर सुनिए उनका यही होता है. नहीं नहीं मैम, आप तो स्कूल में हैं, आप इतने साल से टीचर्स से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप बना दीजिए. सो दिस इज द मेन, कि ये चीजें होती हैं, और पेरेंट्स को ये लगता है इससे बच्चे क्लास वाइज तो आगे बढ़ते ही जाएंगे, उनका साल नहीं बर्बाद होगा, और बाकी पढ़ाई तो हो ही नहीं पड़ेगा. दिस इज द प्रॉब्लम. Any sharing from Ms. Basu? Would you like to share something on this? वो होता है, but then we as professionals have to stick out and say कि नहीं, that's it. तो वो तो ना इस सिस्टम तो सबको ही पुश करने की कोशिश करते हैं ना. That's human nature. I said so no. I said no, so I got a very bad review on social media. But then as professionals, we have to even accept that and deal with it. That comes with our premise of our background. I was termed very unhelpful. वो तो होता ही है. That's. Thank you so much. So we are almost towards the end. We have 4 minutes left. So very quickly, Dr. Sir, would you like to share a success story, like something which So this kid is now around 8 years old. The parents still visit me. His grandfather is a doctor from South Kanpur. So again, the elder kid is very smart. They own a school themselves. They own a school in Kanpur. So the elder son is very smart, very good in studies. The younger one again has some learning disability. Very intelligent kid, otherwise quiet, but just can't study. So I told them special educator. From here this came, ki special education are not teachers, tuition teachers, that they employed a tuition teacher, thinking that is a special education, means somebody will teach you specially, means it's a special educator. No improvement for 6 months. They came back howling and crying, we are doing the same thing, he's not improving, this, that. Finally, I told them what is a special educator. They went to the special educator. Child improved drastically in 3 months. Now they have taken up the task to educate other parents. Any comments from you, Amita ji? आपका कुछ जल्दी से. देखिए, सक्सेस स्टोरीज काफी हैं, पर वो जो जिस बच्ची के साथ हम लोगों ने शुरू किया था, she is very very good drawing and painting, and that after doing that remediation, that self-confidence that was built up, that self-esteem that was built up, and that create like amazing things for the girl. And now that time she is a very very well you can get reputed designer, and she designs so well, because she used to just send me the designs and all, and she started her own entrepreneur and all these things. तो वो सारी चीजें हैं. एक बच्चा और है, अपना बिजनेस फादर का बहुत अच्छा देख रहा है. एक बच्चे को बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक था, तो वो उधर चले गए. So many things are there. The main thing is this, कि आप बच्चे का कॉन्फिडेंस लेके कि yes you can do so many things, कि ठीक है पढ़ाई नहीं होगी, और भी चीजें हैं ना, वो तो हो रही है ना. तो जब ये कॉन्फिडेंस आता है बच्चों के अंदर, तो बहुत चीजें हो जाती हैं, और मतलब बिल्कुल रिकुलस चीजें होती हैं. A final ending note from you, Miss Basu. Lots and lots of success stories. बच्चे अभी उनको दोनों तो 30s के हो गए हैं, and then you see them on the road or you meet them somewhere, कोई बोल नहीं पाएगा कि जो struggles हम लोग ने ना साथ में ना we sort of went through, उनको जब मिलते हैं तो लगता ही नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफिकल्टी है. It's a hidden difficulty, ना. So lovely. So it's just Thank you so much. So we are ending on a very very positive note, but we'll again, all the participants, I'll again want to tell you all that on 10th, sorry, not on 10th, on 17th, 24th and 31st, we will be continuing with our awareness drive. We will be having
successive e-panel discussions. On 17th, we will be talking about how schools should participate in early screening and intervention. And we will be talking about DALI, about which we mentioned herein in detail. What is this dyslexia assessment for languages of India in detail? Then on 24th, as Amita ji talked about, we have to make an IP and then we have to go about. So we will be talking in great detail what is remedial education and why do some kids need it and how do we go about it. And on 31st, we will be talking about the accommodations that are available to our kids in great detail. Thank you so much. Thank you all the panelists for taking time out. It was really lovely talking to all of you. And thank you to all the participants, and hope to see you all again on 17th. Thank you so much. Right? And all the participants, you will be receiving a certificate of attendance as well as the e-handouts. They'll reach